ونس اگین ویلکم بیک. سلام پاکستان ناظرین, آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور آپ سب کو جو لوگ اس وقت اسکرین کے سامنے بیٹھے ہوئے پروگرام دیکھ رہے ہیں, آپ سب کو خواتین کا عالمی دن مبارک ہو, کیونکہ آپ کے گھر میں جو عورت موجود ہے وہ یقیناً آپ کے لیے بہت قابل احترام ہوگی, اور آپ کی زندگی کو سنوارنے میں, آپ کو آگے بڑھانے میں انہوں نے کہیں نہ کہیں ضرور کردار جو ہے وہ ادا کیا ہوگا. اور چلیں اس بات کو بھی ایک طرف رکھ دیتے ہیں, آپ کو اس دنیا میں لانے میں جو سب سے بڑا کردار ہے وہ ایک عورت کا ہے, اور وہ ہے آپ کی ماں. جب آپ کا سر اس کے سامنے خم ہو جاتا ہے, جو ہونا بھی چاہیے, تو وہی عورت جو ہے وہ باقی اس معاشرے میں دوسرے روپ میں اور دوسرے رشتوں میں بھی موجود ہے, چاہے وہ بہن ہے, چاہے وہ بیٹی ہے, چاہے وہ بیوی ہے, چاہے وہ آپ کی دوست ہے, یا وہ کوئی ان نون پرسن ہے, لیکن وہ ایک عورت ہے اور وہ قابل عزت ہے. لوگوں کی کریکٹر اسیسینیشن نہ کریں, بلکہ جو کریکٹر آپ کا ہے, جو کردار آپ کا ہے, جو یہ سکھاتا ہے کہ عورت کی عزت کرنی ہے, اس کریکٹر کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں. بریک پہ جانے سے پہلے دو مضبوط خواتین ہمارے ساتھ موجود تھیں جو اپنے اپنے حصے کا کام کر رہی ہیں. اسی طرح ایک ایسی عورت نے, ہم نے سوچا آج کے دن جو ہے وہ اس خاص طور پر کس کا ذکر ہونا چاہیے, کس سے بات ہونی چاہیے, تو مجھے لگتا ہے کہ اس وقت ان سے بہتر شخصیت جو ہے وہ اس حوالے سے اور کوئی نہیں ہو سکتی, جنہوں نے بہت ہی طریقے کے ساتھ اپنی زندگی کو جو ہے وہ گزارا ہے. اور میڈیا میں رہتے ہوئے کسی کے بارے میں, کیونکہ خواتین کے بارے میں تو ہم بڑی آسانی سے کوئی بھی جملہ کہہ دیتے ہیں, کوئی بھی بات کہہ دیتے ہیں, بڑی عزت کے ساتھ انہوں نے اپنی بھی زندگی گزاری. اور اب جب سے میڈیا میں بھی ہیں, لوگ ان کی بہت عزت کرتے ہیں, ان کو بہت مانتے ہیں, آپ ان کو بہت پیار کرتے ہیں. اس کے بعد ان کے محرم اس دنیا سے گزرے, لیکن اللہ آباد رکھے, زندگی دے, ان کے بیٹے ان کے ساتھ موجود ہیں, بٹ انہوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنی زندگی کو آگے بڑھایا ہے, ایک عورت ہوتے ہوئے مضبوط زندگی گزاری ہے. اور اب جو ان کی زندگی کا حاصل ہے وہ ان کی پروڈکٹس ہیں, جو بھی وہ بھی یہاں موجود ہیں. سو میں ویلکم کروں گی, میرے ساتھ موجود ہیں رانی آپا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں, اور بڑی خوبصورت آپ نے اپنے پروگرام کا آغاز کیا. ویمن ڈے کے حوالے سے ظاہر خواتین نہ ہو تو اس دنیا کے رنگ پھیکے پڑ جائیں, کیونکہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. اور یہ جو بات ہے کہ وجود زن سے تصویر کائنات میں رنگ ہے, یہ بڑی خوبصورت پیرائے میں شاعر نے اس بات کو بیان کیا کہ عورت دنیا کے ہر شعبے میں انسان کو کی پیدائش سے لے کر جب وہ ایک نئے اولاد کو اپنے جنم دیتی ہے, اس سے لے کر وہ ہر رنگ میں کائنات پر چھائی ہوئی ہے, ہر روپ میں چھائی ہوئی ہے, ہر رشتے میں چھائی ہوئی ہے, اور ہر رشتہ اس کے لیے بڑا مقدس اور بڑا اہم ہے. رائٹ. اچھا رانی, میں آج یہ پوچھ رہی تھی, جو ہمارے ساتھ مہناز صاحبہ بھی موجود تھی, کہ آج آپ کو کسی نے اسپیشل ٹریٹ کیا کہ صبح صبح آپ کو بولو کہ نہیں پلیز اپنے پیر زمین پہ مت رکھیے گا, آج آپ کو چائے لا کے دی جائے گی, آج آپ کو ناشتہ پیش کیا جائے گا. میں نے کہا ایسا اسپیشل ٹریٹمنٹ جو عورت کو اگر ملا ہو, مجھے لگتا ہے کہ اتنے دل والے مرد نہیں ہیں ابھی ہمارے. آپ کے ساتھ ہوا ایسے؟ بالکل آج ایسا ہوا, آج ایسا ہوا, کس نے کیا؟ کہ میرے بیٹے دونوں اور میری بہویں آج دونوں گھر پہ موجود تھی, اور ویمن ڈے کے حوالے سے مجھے تو اتنا وہ نہیں تھا, مطلب آج بہت خاص اور اہم دن ہے, بہت خواتین کے لیے بڑا پراؤڈ فیل کرنے کا دن ہے. تو صبح صبح یہ دونوں بیٹے اور بہویں آ گئیں کہ نہیں امی آج وومن ڈے ہے. میں عموماً بیڈ ٹی وغیرہ نہیں پیتی ہوں, بس یہاں سے جا کر پھر میں اپنا کرتی ہوں. تو یہ دونوں میرے لیے آج ناشتہ لے کے آئے, دونوں بیٹے اور بہویں, کہہ رہے وومن ڈے ہے. تو میں نے کہا کیا مطلب وومن ڈے؟ امی آج گرلز کام کریں گی. اچھا اوکے رائٹ. تو انہوں نے آج آپ کو جو ہے وہ بالکل صبح صبح بہت اچھا ٹریبیوٹ دیا, بہت اچھا لگا مجھے کہ یعنی اس بڑا خوبصورت لگی کہ نہیں آج وومنس کام نہیں کریں گی. میں نے کہا کیا مطلب آج گرلز کام کریں گی. چلے گڈ. اور آج میں سٹارٹ میں یہی کہی تھی کہ دیکھیں آپ, کچھ وہ قبولیت کا وقت تھا, مانگنے والا وقت تھا, تو میں نے کہا کوئی آئے مجھے آ کے بتائے کہ اس سے آج اسپیشل ٹریٹ کیا گیا. تو دیکھیں آپ ماشاءاللہ سے, بھئی ظاہر ہے ایک گرل سے وومن بننے میں کا جو سفر ہے وہ تو ایک طویل سفر ہے اور مشکل سفر ہے, بہت مشکل سفر ہے. مجھے خوبصورت لگی ان کی گفتگو کہ آج گرلز کام کریں گی, وومن کام نہیں کریں گی. یعنی تو بلکہ وہ بیٹے جو ہیں میرے وہ چھیڑنے لگے, کیا مطلب عورت تو تم بھی ہو؟ نہیں, انہوں نے کہا ہم لڑکیاں ہیں, ہم لڑکیاں ہیں. دیکھیں آج عورتوں کے عالمی دن پہ بھی جو ہے نا, یہ والی سوچ عورت کی نہیں گئی کہ نہیں بھائی میں لڑکی ہوں. لیکن ان کی بات میں کتنی گہرائی ہے کہ لڑکی سے ایک وومن تک کا سفر
बड़ा पेचीदा, बड़ा मुश्किल, बड़ा तकलीफ दे और बड़ा हिम्मत वाला है। और जो लोग इस लड़की से लेकर औरत वुमेन तक के सफ़र को अचीव कर लेते हैं वो दुनिया में हमेशा जिंदा रहते हैं। एग्जैक्टली ये बात तो सच है, लेकिन मैं अब एक बात कह रही थी रानी आपा कि अल्लाह ने ना औरत के ख़मीर में ही ना वो मोहब्बत और वो ममता उसके ख़मीर में ही शामिल की है। यकीनन वो ज़िंदगी में आगे बढ़ती है तो वो रूप बदलती है, लेकिन अगर वो छोटी भी है ना और अगर उससे छोटे बहन भाई हैं तो वो ऐसे ही प्यार करेगी जैसे माँ कर रही होती है, वैसे ही संभालेगी, हर चीज़ उसके अंदर वो चीज़ पैदा हो जाती है। बिल्कुल। और देखिए ना, अब जैसे एक माँ के समझ लें 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, उनमें से बेटी है, तो बेटे चाहे कितने भी बड़े, तो माँ कहीं जाते वक्त, कहीं आते वक्त, कहीं जिम्मेदारी का बेटा आप बहन है ना, आप भाइयों का ख्याल रखना, बेटा मैं जा रही हूँ, मैं उस वक्त आ जाऊंगी, आप जागती रहिएगा। यानी जो बेटे बड़े हैं, जो शौहर है, उनसे नहीं कहेगी, जो बच्ची है, जो बेटी है, इसलिए एक घर में बेटी जो है रहमत है। मैं ये कहती हूँ कि जिस घर में अगर किसी ने, अल्लाह ताला ने किसी को 10 बेटे भी दिए हैं तो वो नेमत है, लेकिन एक रहमत से ज़रूर नवाजे। ये मेरी फैमिली में कुछ ऐसी फैमिलीज़ हैं जहाँ बेटी नहीं है, तो मैं सोचती हूँ कि काश उनके घर के, जब मैं बहुत डीपली उनके घर का जायज़ा लेती हूँ तब मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ, उन लोगों से भी कहती हूँ कि अगर तुम्हारी एक बेटी होती तो तुम्हारे घर का नक्शा इस वक्त कुछ और। हाँ, ईदें, शबरातें, वो रौनकें, वो हर चीज़ वो बेटियों के दम है। यानी तस्वीर कायनात में रंग भर जाते हैं। जब बेटी जब पैदा होती है तो ज़ाहिर है कि वो एक रहमत अपने साथ लाई हुई होती है, घर के अंदर भी खुशियाँ बिखर जाती हैं। बेटियों की शॉपिंग सबसे प्यारी होती है, जब वो बड़ी हो जाती है उनकी शादी बहुत लाइवली तरीके से होती है, फिर बेटी माँ बनती है, फिर बेटी के जो नाज उठाए जाते हैं, शादी हो जाती है, ईदी है, बकरा ईदी है, बेटियाँ जब आ रही हैं घर के अंदर एक अजब ईद का समा। सही। अच्छा, आज वुमेंस डे पर जहाँ पर हम औरत की कामयाबी का भी जिक्र कर रहे हैं, हम ये भी कह रहे हैं कि इसी माशरे में औरत को पैर की जूती भी समझा जाता है। उसे ये भी समझा जाता है कि इसका काम है सिर्फ जो है वो प्रोडक्शन करना हो और इसके अलावा इसकी कोई हैसियत नहीं है। मुख्तलिफ़ तरह की मिथ्स और मुख्तलिफ़ तरह की जाहिलाना सोच मौजूद है। वहीं कामयाब औरतें भी हैं, आप हैं, इस तरह के और बेशुमार लोग हैं जो काम कर रहे हैं और काम करते करते इस दुनिया से चले गए। बेनज़ीर साहिबा का हमने जिक्र किया, उनसे ज़्यादा जो है वो क्या आप कह सकते हैं, बेशक बड़े बड़े लोग जो हैं अब वो इस दुनिया से गुजरे हैं अपना काम करके। किसी को आप थैंक यू करना चाहेंगी कि आज जो मैं जो रानी हूँ, जो मुझे, वैसे ही आप रानी है, दिलों की भी रानी है, लेकिन उसके पीछे कहते हैं ना, मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है कामयाबी में, आपके पीछे किसका किरदार रहा? देखिए ऐसा ना, मैं उन तमाम ख़वातीन का जिनका मैंने अभी ज़िक्र किया, जो हमारे मुल्क की और जो पूरी दुनिया की बहुत ही नामवर ख़वातीन हैं, वो सब हमारे लिए इंस्पिरेशन का सबब बनती हैं। वो तमाम हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी खातून की ज़िंदगी का कोई पहलू देखते हैं, कोई पहलू पढ़ते हैं, कोई पहलू सुनते हैं, तो कुदरती तौर पर बचपन से उससे अचीव करने का शौक़ हो जाता है। मैंने बहुत सारी ऐसी ख़वातीन को फॉलो किया, मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ने का शौक़ है और मैं हमेशा कहती भी हूँ कि वो घर बिल्कुल फ़कीर है जिस घर में किताबों की दौलत नहीं है। किताबें पढ़ें तो आपको बड़े बड़े लोगों की कहानियाँ मिलती हैं। उसमें बड़ों से मुराद वो नामवर ख़वातीन नहीं है जो सदर, वज़ीर आज़म पाकिस्तान रह चुके हैं, दुनिया की कहीं बन चुकी हैं, वो नहीं। और एक छोटी एक मज़दूर औरत भी जो आपके लिए कुछ करके गई, जैसे कि बहुत छोटे बचपन में हम पढ़ते थे कि एक बादशाह का महल था और वो उसने तामीर कराया तो बुढ़िया रोती भी आ गई कि नहीं, ये तो मेरी जगह है, आपने ये महल क्यों बनवाया यहाँ पे। तो बादशाह को बड़ा अच्छा लगा और उसने उस बुढ़िया के कहने पर उसकी जगह उसको वापस किया और उसका महल टेढ़ा हो गया। यानी एक बुढ़िया के अंदर इतनी पावर थी ना कि उसने बादशाह से टक्कर ले ली एक बूढ़ी औरत में। तो मुझे ऐसी वो तमाम ख़वातीन, और मैं उन तमाम ख़वातीन को ट्रिब्यूट पेश करती हूँ जिन्होंने इस दुनिया में कुछ किया अपने बलबूते पर। रानी आबा मैं भी आप मिली हूँ उनसे, यही कराची में ही खुदा की बस्ती एक इलाका है, वहाँ पर परवीन सईद साहिबा होती हैं जो 3 रुपए में जो है, और वो कहती है 3 रुपए भी मैं इसलिए लेती हूँ ताकि सामने वाले की इज्जत नफ्स मजरू ना हो और मेरे अंदर ये चीज़ पैदा ना हो जाए कि मैं किसी को मुफ्त में खाना खिला रही हूँ, ये जज्बा। वहीं एक शमीम साहिबा हैं जिनको जो है वो व्हीकल लाइसेंस मिला और वो ट्रक चलाती हैं अपने घर को चलाने के लिए। तो ऐसे बड़े बड़े जो है, ये ज़ाहिरी तौर पर आपको लगता है कि छोटा सा शख्स है, लेकिन उसका काम कितना बड़ा है जो वो कर रहे हैं। और यकीन करें, मुझे तो जो मजदूर औरतें जो सड़क के ऊपर पत्थर कूटती हैं, तो मेरे बचपन में मेरी दादी एक मिसाल देती थी, मुझे
بہت یاد آتی ہے وہ مثال، اور میں ہمیشہ اس کو بات کو کوٹ کرتی ہوں. میری جب پتھر کوٹتی ہوئی عورت، ہمارے زمانے میں تو بہت ہی ہمارا بچپنا سادہ تھا، اینٹیں بھٹیاں بنا دیں، نہیں پتھر، یعنی جب سڑک کی بھرائی ہوتی تھی تو عورتیں بڑے بڑے پتھر لے کر اس سے ہتھوڑیوں سے کوٹتی تھی، وہ چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں بن جاتی تھیں ہمارے بچپن کی. اب تو بہت ماڈرن مشینری آ گئی ہے. تو میری دادی یہ مثال دیتی تھی، دیکھو ماں پسنہاری بھلی، باپ بادشاہ برا. تو یہ بات بچپن میں کوئی اتنا مطلب سنتے تھے، بہت اتنا عادت ہو گئی، لیکن جب بڑے ہو گئے تو اس بات کی اہمیت کا ہمیں اندازہ ہوا کہ ماں جو ہے وہ پتھر کوٹنے والی بھی اپنے 10 بچوں کو پال لے گی، اور اتنی محبت اور اتنی شفقت سے پالے گی. اور اگر باپ بادشاہ بھی ہے اور اگر وہ بچوں کی ماں مر گئی ہے تو وہ بچوں کو وہ محبت، وہ پیار نہیں دے سکتا، اس طرح ان کو سپورٹ نہیں کر سکتا جو ایک پتھر کوٹنے والی ماں اپنے بچوں کو جس طرح لے کر چلے گی اور پڑھائے گی اور ان کو اپنے کلیجے سے لگا کر رکھے گی. اب میں ان تمام خواتین کو ٹریبیوٹ پیش کرتی ہوں جو اپنی اپنی فیلڈ میں کچھ کر رہی ہیں. یہ نہیں ہے کہ ایک نامور خواتین جو چند ہمارے سامنے ہیں ہم ان کو اپنا آئیڈیل بنائیں، بلکہ وہ تمام خواتین جو کسی بھی شعبہ زندگی میں کام کرتی ہیں، ہم کہیں جاتے ہیں ان سے ملتے ہیں تو وہ سب ہمارے لیے قابل ستائش ہیں. اور وہ تمام سے مل کے ہمارا ایک کمپلیٹ، مکمل اور تعمیری معاشرہ بن رہا ہے. اور انشاءاللہ تعالی خواتین کے تعاون کے ساتھ ہمارا ملک بہت ترقی کرے گا انشاءاللہ انشاءاللہ. اور جہاں ہم نے بات کی کہ ہر عورت اپنے حصے کا کردار ادا کر رہی ہے، وہیں آپ بھی لوگوں کو خوبصورت بنانے میں، ویسے ہی آپ خود خوبصورت ہیں. ہر پروگرام میں آتی ہیں تو آپ 10 دن اور چھوٹی ہو جاتی ہیں ہر پروگرام میں. حالانکہ آتی 6-7 دن بعد ہے لیکن چھوٹی آپ 10 دن کم لگ رہی ہوتی ہیں. یہ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، اس کا جواب ڈھونڈیں گے پروگرام کے بعد. رانی آپا کے ساتھ بیٹھتی ہوں میں، اس پہ ذرا بات کرتے ہیں ہم. سو رانی آپا کی جو محنت ہے، جو ان کی اسٹرگل ہے ہربس کی دنیا میں، اس کا رزلٹ ہمارے سامنے موجود ہے ماشاءاللہ. سو رانی آپا، خوبصورتی آپ کے لیے خوبصورتی کیا ہے؟ عورت کی خوبصورتی ہے، اس دنیا کی خوبصورتی آپ کے لیے کیا ہے جو آپ نے ان کو خوبصورت بنانے کے لیے اتنا سب کچھ کیا؟ میں بڑی خوبصورت آپ نے بات کی، اور اس بات کو بہت خوبصورتی سے کہنا چاہوں گی کہ خواتین ہو یا مرد حضرات ہوں. دیکھیں مردوں کی تو ظاہری خوبصورتی اتنی نہیں دیکھی جاتی، ان کی اندرونی خوبصورتی کو ہم کاؤنٹ کرتے ہیں. بظاہر یہ کہ ان کی اچھی ایجوکیشن ہو، اچھا ان کا ماحول ہو، یہ تمام چیزیں بہت زیادہ عزت دینے والے ہوں، شریف ہوں. لیکن خواتین کی ان تمام اندرونی خصوصیات کو تو بہت جانچنے پرکھنے کے بعد آپ کو پتہ لگے گا. لیکن خواتین کی جو بیرونی خوبصورتی ہے وہ سب سے پہلے اٹریکشن کا سبب آنکھوں کو جو ہے وہ متاثر کرتی ہے. اور میں ان تمام خواتین کو یہ پیغام دینا چاہوں گی جو انتھک محنت کرتی ہیں اپنی فیملی کے لیے، اپنے لیے. ظاہر ہے تمام خواتین اپنی فیملی کو سپورٹ کرتی ہیں، چاہے ماں باپ کو کریں، چاہے اپنے بچوں کو کریں، چاہے شوہر کو کریں، کسی بھی فیلڈ میں. ایون یہ کہ وہ گھر میں بھی اگر ہیں تو اپنی فیملی کے لیے سب کچھ کر رہی ہیں. تو اپنے اس سب کچھ کرنے کے تقاضوں میں آپ خود کو نگلیکٹ نہ کریں. ایگزیکٹلی، اپنی ہائیجین کا خیال ضرور رکھیں. آپ کی نگلیشن آپ کے گھر والوں سے، آپ کے ایٹماسفیئر سے، آپ کے ارد گرد کے ماحول سے آپ کی دوری کا سبب بن جائے گا. آپ جتنا ٹائم سب کو دے رہی ہیں، لیکن صرف اگر 10 منٹ بھی اپنے لیے ان 24 گھنٹوں میں سے اگر 10 منٹ بھی آپ اپنے لیے اگر نہیں نکالیں گی تو آپ نے اپنی حق تلفی کی، اور اپنی حق تلفی اللہ کو بالکل پسند. اچھا، اور آپ یہ دیکھیں نا، اچھا یہ کہتے ہیں کہ بھائی خوبصورتی کی بات ہے تو یہ تو چلو جو لوگ میڈیا میں ہیں یا جن کا ینگ لڑکیاں ہیں ان کا کام ہے. نو، اسکن کو صاف رکھنا، ہاتھ پیروں کی صفائی رکھنا، بالوں کو صحیح، تو ہائیجین ہے. اور ہائیجین تو بہت ضروری ہے آپ کے اپنے لیے بھی. اس خوبصورتی کو آپ کیسے مینٹین کر سکتے ہیں، اس پر رانی آپا کی پروڈکٹس کے حوالے سے بات ہوگی. بریک کے بعد میرے ساتھ رہیے گا. سلام پاکستان. ونس اگین ویلکم بیک. سلام پاکستان ناظرین، آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور خواتین کے عالمی دن پر ایک سپر وومن ہمارے ساتھ موجود ہیں، رانی آپا، اور جو ان کی زندگی کا حاصل ہے یہ تمام پروڈکٹس، اس حوالے سے ہم بات کریں گے. خوبصورتی جو ہے وہ آپ کا حق ہے، اور خوبصورت لگنے کے لیے، خوبصورت رہنے کے لیے جن تمام چیزوں کو، بیسک چیزوں کو آپ کو ضرورت ہوتی ہے، آج ہم ان بیسکس کی بات کرتے ہیں. رانی آپا، چہرہ آپ کا اچھا ہو پہلی نظر پڑتی ہے، آپ کے بال، آپ کے ہاتھ اور پیر. سو ہم ون بائی ون ان تمام چیزوں پر آئیں گے. اگر ہم چہرے کی بات کریں، آپ کچھ کہہ رہی ہیں. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ خواتین اپنے آپ کو اپنی
मसरूफियत में बिल्कुल इग्नोर कर देती हैं, और एक ऐसा टाइम आता है जब वही फैमिली मेंबर्स कहते हैं अल्लाह आप तो बिल्कुल प्रेजेंटेबल नहीं लग रही, नहीं आप प्लीज़ अपनी केयर करें, क्यों नहीं आप तैयार होती हैं। एक वक्त में वो कहती हैं जब वक्त उनके हाथ से चला जाता है। और जो रानिया आपा आपने बात कही ना, आजकल बच्चे चाहते हैं कि उनकी माएँ जब स्कूल आएँ तो प्रेजेंटेबल लगें, बहुत महंगे नहीं लॉन के जोड़े, लेकिन साफ सुथरे कम से कम तरीके तैयार होकर जाएं, आप सबसे मुनफरिद नजर आएंगे। मैं अपने बच्चों के बचपन की बात आपसे शेयर कर रही थी, और ये इंस्पिरेशन मुझे अपने बच्चों से बचपन में मिली। सिंध असेंबली में ख्वाजा इजहार मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। खुद अगर बेअदबी करें, खुद अगर बदकलामी करें, तो बाकी पार्टी से क्या तवक्को की जा सकती है। हम समझते हैं कि जो लफ्ज कल से मीडिया की जीनत बना हुआ है, लफ्ज फटीचर, मीडिया को भी चाहिए कि इस लफ्ज की पब्लिसिटी से गुरेज करें और तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा इस लफ्ज की वकालत करने के बजाय माजरत करके बात को खत्म करें। ठीक है जी, बस ये इतना ही आज का था। सर असेंबली में भी कुछ छोड़ दो ना। ख्वाजा ज़रूर हसन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनके कहने के तहरीक इंसाफ के रहनुमा लफ्ज़ फटीचर के हवाले से माफ़ी मांगे और मीडिया भी इसकी पब्लिसिटी ना करे। ये थे वक्त नाज़रीन। काले सामने रंग में बहुत कशिश होती है, नो डाउट बहुत कशिश होती है, लेकिन हर लड़की का ख्वाब होता है कि इस सांवले रंग को भी जरूर नहीं कि आप गोरी हो जाएं, लेकिन इस सांवले रंग खिला खिला लगे, खूबसूरत बनाएं, बेदाग बनाएं, फ्रेश बनाएं, आपकी स्किन इतनी ग्लो करे कि लोग आपकी तरफ खिंचे चले आए, यानी और ये मकसद है कोई गैर आ जाए, आपकी अपनी फैमिली मेंबर, अपने बहन भाई, आपके शौहर, आपके बच्चे, उन अपनी फैमिली के लिए, आप अपने इर्द गिर्द के माहौल के लिए आप जहाँ भी हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगी कि रंग सिर्फ गोरा नहीं बल्कि स्किन को टाइट भी होना चाहिए। इसके लिए हमारी ये दोनों क्रीमें हैं, क्योंकि मैं हर पहलू पे नजर रखती हूँ। ऑल टाइप ऑफ वाइटनिंग के लिए ये क्रीम है। सबसे पहले जब हमारी बॉडी में कोई कमजोरी आती है, खून की कमी हो जाती है, या हम एजिड होने लगते हैं, या अपनी ग़िज़ा को निगलेक्ट कर देते हैं, तो सबसे पहले हमारी स्किन पर होने लगते हैं फ्रैकल्स और दाग धब्बे, जिससे पता चलता है कि हम 100% फिट नहीं है, और उसके साथ ही स्किन सैगी होने लगती है, यानी लूज होने लगती है। तो खुदारा अपने आप को बिल्कुल इग्नोर ना करें। रानी हर्बल की ये दोनों क्रीमें ऑल टाइप ऑफ वाइटनिंग के लिए, ये रंग गोरा करेगी, दाग धब्बे, झाइयाँ, पिगमेंटेशन, आंखों के गिर्द हल्के, दानों के काले निशान, यानी ऑल टाइप ऑफ वाइटनिंग के लिए ये क्रीम। और इसके साथ साथ आपको चूंकि टाइटनिंग की भी जरूरत होगी, तो ऑल टाइप ऑफ टाइटनिंग के लिए ये वाली क्रीम दोनों मिक्स कर, ये स्किन टाइटनिंग क्रीम है। आपकी स्किन को रिंकल फ्री करेगी, आपके पोर्स टाइट करेगी, स्किन की सैगिनेस को खत्म करेगी, आपके फेस को ग्लो देगी। लिहाजा ये दोनों क्रीमें मिक्स करके किसी दूसरे जार में रख लें, और सिर्फ रात को ही आपको लगाना है, और जल्दी आपको रिजल्ट चाहिए तो एक बार दिन में भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन चूल्हे के सामने जाते हुए अप्लाई नहीं करनी है। अच्छा रानिया भाई आप रख दें ताकि कैमरा भी दिखा दे सेट बना के। ये दोनों क्रीम्स है रानिया पर, और इसके साथ जो है ये फेस वॉश आपको इस्तेमाल करना है दिन में ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि आप दूसरी प्रोडक्ट यूज कर रहे होते ना साथ, तो फिर रिजल्ट नहीं मिल रहा होता। और हफ्ते में 2 बार ये फेस पॉलिशर इस्तेमाल करना है। ये वाइटनिंग का पैकेज है, और इसी के रिजल्ट को क्विक करने के लिए हमारी वाइटनिंग फेशियल किट का भी हफ्ते में 1 से 2 बार प्रॉपर फेशियल करें। इसका तरीका इस्तेमाल भी इसके अंदर है। एक बात और शेयर करना चाहूंगी कि मेरे पास फोन आता है, मेरी शादी में 1 महीना रह गया, मेरी शादी में 15 दिन रह गए, या मुझे फला जगह जाना है। आप देखिए प्लीज़ मैं आपको बता दूं कि मेरी हर्बल प्रोडक्ट है, मैंने ज़िंदगी में कभी धोखा नहीं किया, झूठ नहीं बोला, और अल्हम्दुलिल्लाह इसीलिए 12-14 साल से स्क्रीन पर आपके सामने हूँ, क्योंकि झूठ के पाँव नहीं होते और सच हमेशा सलामत रहता है। और अल्हम्दुलिल्लाह एक बात और कहना चाहूँगी कि मेरी इन्हीं प्रोडक्ट की अचीवमेंट के हवाले से मुझे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के तमाम शोबाए ज़िंदगी में माना गया है, और मुझे मेरी प्रोडक्ट के एवज़
इसकी बेहतरीन रिजल्ट के एवज मुझे जो अवार्ड्स मिले, उसमें मुझे वंडर वुमेन का एक अवार्ड है जो कि सर फहरिस्त है, पाकिस्तान की फर्स्ट लेडी हर्बलिस्ट का अवार्ड है जो कि सर फहरिस्त है, और एक बहुत बड़ा अवार्ड मुझे मिला है हु इज़ हु का अवार्ड। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एहसान से मुझे एशिया की बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट का भी, चूँकि मैं एक ब्यूटिशियन भी हूँ, 2007 में मुझे पाकिस्तान की एशिया की बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट का भी अवार्ड मिला था। चलिए हम किसी दिन आपके पार्लर आएंगे, वहाँ आके शो करेंगे और फिर आपके तमाम जो अचीवमेंट्स हैं ये अपने कैमरा के थ्रू लोगों को दिखाएंगे। ये हमारे जो पड़ोस मुल्क है उसके साथ और यूके के ताउन से ये प्रोग्राम पाकिस्तान में हुआ था, और इसमें मुझे चैम्बर ऑफ पाकिस्तान की होल लाइफ के लिए मेंबरशिप भी मिली थी। क्या बात जो है, अल्हम्दुलिल्लाह इसकी और इसकी वजह से मैं दुनिया के बहुत से ममालिक में भी जा चुकी हूँ और वहाँ पर भी मेरी प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुई है। अच्छा रानी आपा, ये जो अभी आपने मुझे प्रोडक्ट का बताया, ये एक सेट है रानी आपा का, दाग धब्बे रंग झाइयाँ हर तरह का जो आपका चेहरे का मसला है, सिवाय एक्नी के हर स्किन का मसला जो है, पिगमेंटेशन हो, डार्क सर्कल्स हो, रंग हो, ये सब चीज़ें ये 3 प्रोडक्ट से जो है आप कर सकते हैं। रानी आपा नौरीन साहिबा लाहौर से कह रही हैं वो दोनों क्रीम यूज़ कर रही हैं, आपकी जार में मिक्स कर लिए, कहती हैं जब मैं लगाती हूँ ना तो ये जमने लग जाती है। ठीक है, तो क्या मैं इसमें अलसी का तेल शामिल कर लूँ या आप क्या बताएंगी कि ये जमे ना चेहरे पर? जमे ना चेहरे पर, देखिए मैं जो भी क्रीम बनाती हूँ अकॉर्डिंग टू वेदर बनाती हूँ। ठीक है, तो ये लाहौर ये से कह रही सर्दियों हैं। में इन्होंने मंगवाई होगी हमसे। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि आप कभी भी मेरी जो प्रोडक्ट है उससे 15 दिन 20 दिन या 1 महीने में कोई रिजल्ट अचीव करने का ना सोचें। ये तमाम फ्रेकल्स हमारी स्किन की बहुत गहरी लेयर्स में होती हैं और हमारी प्रोडक्ट के मुसलसल 3 से 4 माह तो हम इस्तेमाल करने को कहते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपको मजीद भी इस्तेमाल करना पड़े क्योंकि ये जड़ से ऊपर लाकर ख़त्म कर देती है। इसमें टाइम टेकिंग है, उसका मसला नहीं है, जम रही है, उसके लिए क्या तो करें? इसके साथ आप कुछ भी इस्तेमाल ना करें, सिर्फ जब आप क्रीम मिलाकर लगाएं तो ये रानीज क्लेंजिंग मिल्क के साथ चंद कतरे इसमें मिलाकर इसको पहले मेल्ट कर, मतलब पहले क्रीम, दोनों क्रीम मिक्स किए जार में, अब जब क्रीम लेंगी तो उसमें ये लगाते वक्त चंद कतरे रानीज क्लेंजिंग मिल्क के मिलाकर इसको बिल्कुल माइल्ड करें और उसके बाद आप लगाइए। और किसी चीज़ के जब मेरी प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे तो हमेशा बताती हूँ कि मेरा ही क्लेंजर इस्तेमाल करें, मेरा ही फेस पॉलिशर करें और मेरा ही फेस वॉश करें। और अगर आपको मास्क की भी ज़रूरत है तो रानी हर्बल का रानीज वाइटनिंग मास्क है, ये आप इस्तेमाल करें। दिन में 1 बार इस्तेमाल कर सकती हैं, हफ्ते में पूरे हफ्ते भी डेली इस्तेमाल कर सकती हैं। अच्छा और ऐसा भी होता है ना कि ऑलरेडी हो सकता है आप चेहरे पर कोई क्रीम या कोई ऑयल लगाती हो और उसके ऊपर आप क्रीम अप्लाई करी हो तो भी ऐसा होता है कि वो नहीं जो है चिपक जाती है उस जगह पर। एग्जैक्टली, तो प्रॉपर आप पहले क्लीन कर लें। ये जो रानी आपा का जो फेस वॉश है उससे आप चेहरा क्लीन करें, उसके बाद आप लगाएं। और अगर फिर भी आपको लगता है जम रही है, नहीं ठहरी, तो देन क्लेंजिंग मिल्क जो है वो मिला के लगाएं। और एक आपने दूसरी बात की कि सबसे पहले रंग और कद का भी एक ऐसा मसला है कि आजकल एशिया में कद लंबे ज़रा से कम हो गए हैं और हमारा यूरिया कुछ ऐसा है कि लोगों के कद निस्बतन छोटे हैं। ख़वातीन के लिए तो इतना परेशानी का बाइस नहीं होता, लेकिन लड़कों के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का बाइस है। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ ये है कि चलो 5'2" तक की लेडी चल जाती है, लेकिन अब नया जमाना है, क्यों लड़कियां 5'2" पर इत्तेफाक करें। अच्छा, आप हल बताने से पहले नाम उनका बता दूं मैं, ताकि उनको ये खुशी हो जाए कि रानी आपा ने उनके सवाल का जवाब दिया। नाजिया सियालकोट से, उनके नंबर स्क्रीन पर है। वो इसके लिए दवा देते हैं, पॉलिसिस्टिक ओवरी के लिए बेहतरीन दवा देते हैं, चूंकि हर्बल का है तो कोई साइड इफेक्ट है नहीं। बेऔलादी का उस दवा के साथ आपका स्लिमिंग पैक यूज करना है, बिल्कुल या पहले वो इलाज हो जाएगा बाद में? देखिए पॉलिसिस्टिक ओवरी है तो पहले आप मर्ज पर तवज्जो दीजिए। आप मुस्तफा साहब से बात करें, वो इसके लिए आपके साथ इलाज करेंगे। पॉलिसिस्टिक ओवरी की वजह से हमारे यहाँ बहुत सारे बेऔलादी के मसाइल भी हैं। मैंने सोचा है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट कमिंग वीक से मुस्तफ़ा साहब को अपने साथ लेकर आऊं ताकि वो काइंडली अच्छी तरीके से ब्रीफिंग दे सकें। वो हर बीमारी का बेहतरीन इलाज करते हैं, जिसमें बेऔलादी का बेहतरीन इलाज है, एबनॉर्मेलिटी का बेहतरीन इलाज है, हड्डियों के भुरभुरापन का बेहतरीन इलाज करते हैं, जितनी क्रॉनिक डिजीज़ हैं जिसमें कैंसर है, हेपेटाइटिस सी है, उनका बेहतरीन इलाज करते हैं। बीमारियां हैं, जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, उनके हल के लिए बाकी खूबसूरती के हवाले से तो रानी आपा की प्रोडक्ट मौजूद हैं। तो पहले आपने अपने मर्ज का इलाज करना है, उसके बाद डेफिनेटली वजन अगर
पॉलीसिस्टिक ओवरी की वजह से तो वो वैसे ही बैलेंस होना शुरू हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपकी सपोर्ट के लिए स्लिमिंग पैक है रानी आपा का और कहवाए मुस्तफा, इन दोनों चीज़ों का आपको इस्तेमाल करना है। साथ जो प्रॉब्लम होती है हमारे हार्मोन्स डिस्टर्ब होने की वजह से बाल हल्के हो जाते हैं, चेहरे पर फेशियल हेयर, अनवांटेड फेशियल हेयर, तो बालों के लिए रानीज हेयर टॉनिक एक कमाल का तेल है। ये गिरते बाल रोक देगा, जो बाल गिर चुके हैं उसकी जगह नए बाल पैदा करेगा, बाल घने लंबे काले मजबूत करेगा। ये एक डिबिया एक बॉटल 1 माह की और मैजिक है। ये इतनी सी बॉटल है, ये एक हफ्ते में 2 बार लगाना है इसको जी, हफ्ते में 2 बार लगाना है और सिर्फ जड़ों में लगाना है। हल्का सा गर्म करके पहले इसको गर्म करें, फिर जड़ों के अंदर लगाएं, उसके बाद हल्के हल्के मसाज करें, उसके बाद नेल्स के साथ ईचिंग करके इसको जस्ट करें ताकि पोर्स खुल जाएं। और इसके साथ शैम्पू भी आपको हमारा ही इस्तेमाल करना है इंशाल्लाह। बहुत सारे खुलजा सिमसिम वाले हमारे प्रोजेक्ट हैं जो इंशाल्लाह कमिंग वीक्स में, कमिंग मंथ्स में आपके लिए, क्योंकि हम तो हमारा तो काम ही आपके लिए दिन और रात काम करना है और अल्लाह ने चाहा बहुत जल्दी हम अपना ये नया पिंडोरा बॉक्स खोलने वाले हैं आपके तो अभी हेयर्स के लिए रानी आपा का हेयर टॉनिक मौजूद है। आपके बाल कम हो रहे हैं, गिर रहे हैं, डैंड्रफ का मसला है आपका, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। रानी आपा का शैम्पू है। इसके साथ साथ हेयर्स की अगर हम बात करें तो रानी आपा हेयर कलर्स हैं, बिल्कुल हमारा हेयर कलर 2 कलर में हेयर कलर्स हैं, ब्लैक और ब्लैक ब्राउन। मैं इसीलिए बता देती हूँ कि ये ब्लैक है और ये नियर टू ब्लैक है और ये तकरीबन 1 माह स्टे करता है। हर्बल है, आप इसको ज़रूर लगाएं, लेकिन फैशन कलर अभी तक नहीं है। ये बालों के लिए तेल है और हेयर कलर है और इसके साथ ही ये तमाम प्रॉब्लम के साथ ही एक ख़ास प्रॉब्लम होती है चेहरे के गैर ज़रूरी बाल। इसके लिए रानीज़ अनवांटेड हेयर के नाम से प्रोडक्ट है जो भी मार्केट में या अवेलेबल ट्रीटमेंट्स हैं जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस है, जिसमें डर्माब्रेशन है, लेजर है, उन सब फौरन ब्रेक का कहा जा रहा है। ठीक है, तो ब्रेक से वापस आ जाते हैं, फिर हम इस पे बात करेंगे। आपके मैसेजेस भी शामिल करूंगी ब्रेक के बाद। मेरे साथ रहिए। सलाम पाकिस्तान। For booking and other details, fazayakarachi.org. UN 021 111 329 242. 4 घंटे गाए मैंने, गला बैठ गया गा गा, लेकिन दिल को नहीं लगा गाना। तुझे तो पता है मुझे सिंगर बनने का कोई शौक नहीं है, बस है थोड़ा बहुत और गाता भी अच्छा हूँ मैं। नहीं, भीख मांगने में और कर्ज मांगने में बहुत फर्क होता है। ओके, कितने? इसकी जहमत क्यों कर रही है, मैं खुद ले आता हूँ। गा दूंगा भाई भाई। एल्बम बनाने के लिए पैसे होते हैं मेरे पास, म्यूजिक छोड़ना नहीं पड़ता मुझे। गाना छोड़ दो, गाना छोड़ दूं? तुमसे कोई क्या भौंकता छोड़ दोगी? छोड़ दोगी? जितना मज़ा हमें आपके लिए नूर बनाने में आया, उतना ही मज़ा आपको देखने में आएगा सिर्फ PTCL स्मार्ट टीवी पर। वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान नाजरीन। रानी आपा हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, आपकी कॉल्स हम शामिल कर रहे हैं, मैसेजेस आप अपने लिखवा रहे हैं। रानी आपा, एक मैसेज आया है, शाजिया फ्रॉम कसूर कह रही हैं कि 15 दिन पहले उन्होंने आपको ऑर्डर लिखवाया था लेकिन अभी तक जो है वो प्रोडक्ट्स नहीं पहुंची हैं कसूर से। देखिए, कसूर में हम पाकिस्तान के तमाम शहरों में भेजते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं हम पे मेरे ख्याल है दिन में 25 फ़ोन कर देते हैं कि अर्जेंट हमें चाहिए, अर्जेंट चाहिए। और जब COD वाले उनसे कांटेक्ट करते हैं, उनके मोबाइल नंबर्स पे उनसे कांटेक्ट करते हैं तो वो बंद मिलता है। और जाहिर है वो 24 घंटे से ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकते, फिर ऑब्वियसली प्रोडक्ट हमें वापस हो जाती है। इससे हमें दोहरा नुकसान होता है, एक तो भेजने का नुकसान, फिर वापस आने का नुकसान। काइंडली सिर्फ वो लोग हमें कांटेक्ट किया करें, हम बहुत ऑनेस्टी के साथ काम करते हैं। मेरी तमाम फेसबुक रानीज़ हर्बल प्रोडक्ट के नाम से मेरी फेसबुक है, उस पर आप अपने तमाम मसाइल के हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। हमारी प्रोडक्ट का जो सैर हासिल डेमोज़ है और मुकम्मल मालूमात के लिए भी रानीज़ हर्बल प्रोडक्ट के नाम से जो हमारी
फेसबुक है, उससे ज्वाइन कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हम जवाब हर एक का देते हैं। लेकिन आपको मैं बताती हूँ कि पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में जहाँ सर्विसेज जाती हैं मैं प्रोडक्ट पहुँचाती हूँ, लेकिन हमारी आगे से जो है वो अपना फ़ोन नंबर ही ऑफ कर देंगे या आपने एड्रेस प्रॉपर नहीं डाला हुआ, अभी तो मैं आपको बताऊँ, परसों की एक बात है, बहुत उनका नाम मैं शेयर नहीं करूँगी, बड़े एक पोस्ट पर हैं उनके हस्बैंड और वो खुद, उन्होंने हमें इतना प्रेशराइज किया, आप प्लीज़ भेजें, कितने की प्रोडक्ट है, हमने अर्जेंटली उन्हें भेज दिया। और जब कल उनकी वापस आई ये प्रोडक्ट, बहुत बड़ा उनका पार्सल था, क्यों वापस और रिसीव नहीं किया, फ़ोन बंद। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि चोरी छुपे से फ़ोन करते हैं, बेशुमार फ़ोन करते हैं लेकिन रिसीव नहीं करते। तो प्लीज़ आप हमें तकलीफ ना दें, हमारा नुकसान ना कराएं। अगर आपके घर वाले आपको इजाज़त देते हैं, आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो काइंडली हम आपके लिए हैं, हमारी प्रोडक्ट आपके लिए हैं, हम आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बैठे हैं, लेकिन आपका ताउन हमें हर हाल में चाहिए। सो जब आप हमें अपना ऑर्डर लिखवाएं, इसमें हमें ब्लेम बिल्कुल मत दें, इसमें कसूर आपका होता है कि आपके मोबाइल नंबर कुछ शौहर या कुछ भाइयों का खवातीन दे देती हैं, वो कहते हैं नहीं जी मैं नहीं जानता, ये तो मेरा है, वो तो मेरी बहन है, मुझसे कोई जिक्र नहीं किया। तो मैं जो वो ये गलत बात है, आप थोड़ा सा मैच्योर हो के नहीं मंगवानी तो आप दूसरे को कम से कम जो है वो नुकसान ना पहुंचाए। अच्छा रानिया पा, ये मुझे बताइए कि हाँ, ये जो नंबर्स हैं आपके स्क्रीन पर मौजूद, इन पर कॉल करके लोग ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है? बिल्कुल करेंगे, आप ही के लिए है। हाँ, बिल्कुल। इसके अलावा कुछ इस तरह की भी जगह है जहाँ पर ऑलरेडी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं? बिल्कुल, जैसे कि हमारी सक्खर में डिस्ट्रीब्यूशन है, सक्खर में सलीम जनरल स्टोर पर, रेशम बाजार और सेम प्राइस पे है, कोई एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं है? पाकिस्तान में एक कीमत है, राजनपुर में है, भावलपुर में है, मुल्तान में पेस एंड पेस पर हमारी प्रोडक्ट मौजूद है। इसके अलावा हम आपको राजनपुर के अलावा भावलपुर, मुल्तान में पेस एंड पेस, सक्खर में सलीम जनरल स्टोर और कराची में तमाम सुपरमार्केट्स के अलावा हमारी तमाम कॉस्मेटिक शॉप पर, तमाम मार्केट की कॉस्मेटिक शॉप पर हमारी प्रोडक्ट मौजूद है। और प्रॉब्लम की सूरत में मेरे पार्लर से, मेरे ऑफिस से आकर ले सकते हैं। इसके अलावा पार्लर की सर्विसेज के लिए भी हमारे नंबर खुले हुए हैं। मैं अभी आपको एड्रेस भी बता दूंगी, मुस्तफ़ा साहब तक पहुंचने के लिए आपको एड्रेस बता दूंगी। और कराची में इम्तियाज़ पर है, चेस पर है, नाहिद पर है, और इसके अलावा टाइम्स मेडिकोस पर भी हमारी प्रोडक्ट अवेलेबल है, आप वहाँ से ले सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर आप जहाँ से फिर भी कोई आपको हमारी प्रोडक्ट के हुसूल में परेशानी है तो नंबर उठाइए, हमसे लोकेशन भी मालूम कर सकते हैं। आप इजीली जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, रानिया आपा से बात कर सकते हैं। रानिया आपा, 2-3 सवाल हैं वो अर्जेंट जल्दी शामिल करूँगी मैं। शाजिया जो कसूर से जिन्होंने कहा प्रोडक्ट नहीं पहुँची, वो कह रही है मेरी बेटी है 6 साल की, उसकी याददाश्त का बड़ा मसला है, वो भूल जाती है, और जिस तरह आप पेपर्स होने वाले हैं उसके लिए, तो उसके लिए सबक याद करना सबसे मुश्किल है। सबसे पहले तो मैं आपको कि रॉयल जेली एक पैक किस्म की है कि आप पिला दीजिए। खवातीन, मर्द, हजरात, बच्चे जो आजकल एग्ज़ाम्स हैं सारे बच्चों के, ऑब्वियसली आजकल बच्चों के कल बड़ों के होने वाले हैं, एक एक पैक आप सबको ज़रूर पिलाइए। ये दिमागी सलाहियतों को भी तेज़ करता है और कमज़ोरी को दूर करता है। ऑब्वियसली बच्चे कमज़ोर होते हैं तो पढ़ने में दिल नहीं लगता। उन तमाम के लिए जिनको नींद ना आती हो वो ये ज़रूर इस्तेमाल करें, खून की कमी दूर करने के लिए, किसी बीमारी को कंट्रोल करने के लिए। और बच्चे जो थोड़े गबी हैं या कुन जहन है उनके दिमाग को शार्प करती है। इसके अलावा हकीम मुस्तफ़ा अनीसुर रहमान इसका बेहतरीन इलाज करते हैं। आप नंबर उठाइए। कोई नुस्खा है ऐसा जिससे दिमाग तेज, जिस तरह लोग कहते हैं बादाम खाएं, लेकिन वैसे कहते हैं बादाम दिल को तकवीत बख्शता है, अखरोट का जिक्र किया जाता है कि वो दिमाग जैसा करता है, लेकिन कोई नुस्खा आप शेयर करना चाहेंगी? जी जी जी, बरहमी बूटी, असगन नागौरी और बादाम ये लेकर आप ऑर्डर बरहमी बूटी, असगन नागौरी और बादाम, ये 3 चीज़ें अपने बच्चों को, बड़ों को खिलाइए। लेकिन ये तमाम चीज़ें मैंने बताया कि देर में काम करती हैं और दवा तेज़ी के साथ काम करती है। तो मैं कहूँगी कि हकीम मुस्तफ़ा अनीसुर रहमान से आप इन्हीं नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए। मेरे पास आने के लिए, पार्लर की किसी भी सर्विस लेने के लिए, मेरी प्रोडक्ट लेने के लिए, मेरे साहबजादे हकीम मुस्तफ़ा अनीसुर रहमान के पास इलाज के लिए आने के लिए मैं आपको पता बता दूं कि शराय कायदीन पर नूरानी कबाब है। नूरानी कबाब पर खड़े होकर बिल्कुल सामने देखिए यूबीएल बैंक है। आप यूबीएल बैंक वाली गली में आ जाएं। गली जब ख़त्म होगी सीधे हाथ पर मुड़कर किसी से भी मालूम कर लें मॉडल स्कूल कहाँ है। मॉडल स्कूल के मेन गेट के सामने आपको हकीम मुस्तफ़ा अनीसुर रहमान का क्लिनिक और रानीस ब्यूटी पार्लर का बोर्ड दोनों साथ जो है वहाँ पर आप जो कराची वाले जो हैं वो ज़रूर आप जा सकते हैं। रानी आपा अब्दुल सलाम साहब हैं दुबई से, बहुत शुक्रिया उनकी कॉल का। उन्होंने कहा
ऑलमोस्ट 38 ईयर्स उनकी एज है, कह रहे हैं मेरे बाल जो हैं वो डेंड्रफ बहुत ज़्यादा है मेरे बालों में और मेरे बाल गिर रहे हैं, तो मैं क्या करूं इसके लिए? रानीज हेयर टॉनिक का आज ही से इस्तेमाल शुरू करें। और जब आप कलर पे नहीं, मैं दुबई नहीं भेजती हूँ, पाकिस्तान में तमाम मेरे पास पूरी दुनिया से कॉल्स आती हैं, यहाँ पर हैं तो वो पूरी दुनिया से कॉल्स आती हैं। मैं कहती हूँ कराची के किसी भी शहर में आपके रिलेटिव हैं, उनसे कांटेक्ट करें, वो हमसे आपको भिजवाएं और रानीज हेयर कलर पर भरोसा करें, ये इस्तेमाल करें। और फिर आपको कहूँगी एक्नी के बारे में, गर्मियाँ आ गई हैं कि शायद मुझसे बेहतर कोई और पाकिस्तान भर में एक्नी का ट्रीटमेंट नहीं कर सकता। सो आप प्रोडक्ट पर एतबार करते हुए, लड़कियों से ज़्यादा लड़कों में भी ये मसाइल बहुत हैं। रानीज एक्नी पैक 1.5 माह का है, जो लोग मेरे पास आ सकते हैं वो सिर्फ 6 से 8 सिटिंग लेंगे और उनकी एक्नी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। और जो लोग मुझसे दूर हैं और मर्द हजरात, ये एक पैक, इसके साथ हमारा ये फेस वॉश और फेस पॉलिश भी मंगा लें। ये एक पैकेज है और इसके साथ पैकेजेस में एक्नी का पैक है, फेस पॉलिश और 1250 का ये पैक है। और जो वाइटनिंग और वाइटनिंग का पैकेज है वो 1500 का है और 2000 रुपए की ये रॉयल जेली है। इसके अलावा जो हमारी वाइटनिंग किट है ये भी 1000 की है, एक्नी फेशियल किट भी 1000 की है और हर्बल फेशियल किट 800 की। अच्छा राइट। हिना सरगोदा से पूछती हैं, कह रही हैं 25 साल मेरी उम्र है, मेरी स्किन बिल्कुल ठीक थी लेकिन पिछले जो है वो कुछ महीनों से जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि बटरफ्लाई बन रही हैं, झाइयाँ जो हैं वो आना शुरू हो गई हैं जब जाहिर हो रही हैं। सो रानिया आपा आप कौन सी? ये हमारा वाइटनिंग का पैकेज, वाइटनिंग फ्रेकल और फेनिस क्रीम, पिंक और ग्रीन वाली क्रीम, 25 साल उम्र में दोनों यूज करनी है। मैंने दोनों जब भी स्किन पर प्रॉब्लम आती है तो पोर्स खुलने लगते हैं, अगर आपने गौर किया हो तो मैं हमेशा यही रिकमेंड करती हूँ। 24 साल की उम्र तक मैं कहती हूँ कि सिर्फ फ्रेकल यानी ग्रीन वाली क्रीम, और जो 25 को पहुँच गए वो दोनों अगर इस्तेमाल करेंगे तो बेहतर रिजल्ट मिलेगा। सही। अच्छा नाजिया टेक्सला से कह रही हैं कि तकरीबन 10 दिन पहले इन्होंने भी ऑर्डर किया था और इनको प्रोडक्ट नहीं मिली है। सो लास्ट ऑलमोस्ट 10 डेज हो गए। मैंने आपको बताया जितनी भी कॉल्स आती हैं ये लोग रिसीव नहीं करते, हम 1 वीक का टाइम लेते हैं और विद इन वीक आपको प्रोडक्ट घर बैठे पहुंचा देते हैं। अच्छा नहीं रानिया मैं आपको बता दूं, ये लास्ट संडे इन्होंने ऑर्डर किया है तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मतलब 3 दिन हुए तकरीबन। तो कितने दिन में वैसे नॉर्मल 1 वीक का हम टाइम लेते हैं, 7 डेज में आप 1 वीक का टाइम लेते हैं, लेकिन 2-3 दिन में यानी विद इन वीक के अंदर मसलन आपने अगर बुध को हमें ऑर्डर दिया तो आपको पीर मंगल तक मिल जाएगा। ठीक है। अब इन्होंने संडे को किया है तो ऑलमोस्ट फ्राइडे या फ्राइडे तक आपकी, लेकिन काइंडली जब हमें अपने फ़ोन नंबर्स दें, आपको COD वाले जो है उस नंबर पर इन्फॉर्म करते हैं कि हम आपकी प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं। लिहाजा अगर आपको कहीं जाना है अपने घर में किसी बंदे को पेमेंट देकर आप रखें। हमने तो आपकी आसानी के लिए ये भी कर दिया कि पेमेंट आपसे पहले नहीं मंगाई ताकि आपका एतमाद बरकरार रहे। कुछ लोग ये समझते हैं पेमेंट पहले मंगा ली, हो सकता है झूठे हों, या हम तो अपना सब कुछ आपको देकर फिर आप पर भरोसा करते हैं। लिहाजा हमारे भी भरोसे पर को आप ठेस ना पहुंचाए और काइंडली जब हमें ऑर्डर दें सिर्फ ऑनेस्ट लोग दें, हमें तकलीफ ना दें कि हम इतनी एफर्ट्स के बाद आपको बहुत खर्चे के बाद आपके घर तक प्रोडक्ट पहुंचाते हैं और आप फिर कुछ लोग तो लेने से इनकार कर देते हैं। अरे भाई और ऐसे भी लोग हैं कि जिनको प्रोडक्ट ज़्यादा मिलती है। एक साहब है उनका फ़ोन आया कि 6 महीने हो गए मुझे आपके एक हेयर टॉनिक और एक शैम्पू फालतू मिला था, काइंडली जो मेरा नया ऑर्डर है उसके अंदर इन पैसों को जरूर शामिल कर दीजिएगा। ये ईमानदारी है, ये ईमानदारी है और ईमानदारी के हमेशा पैर होते हैं और हमेशा फलती फूलती है। अच्छा रानी अपा एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी, अभी हम जिक्र भी कर रहे थे प्रोग्राम से पहले कि अब मौसम तब्दील हो रहा है ना, गर्मी की तरफ हम बढ़े और इंशाल्लाह रानीस हर्बल प्रोडक्ट के नाम से जो रानी अपा का फेसबुक का पेज है वहाँ पर तो तमाम डेमोज मौजूद हैं, लेकिन आप अब इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम से मेरे भी आप यहाँ देख सकेंगे, रानी अपा डेमोज लेकर आएंगी। अब स्किन पर ना ऑयल आना शुरू हो गया है, गर्मी ऐसी हो गई है और आपको स्किन अब जिस तरह मुझे उस दिन कोई कह रहा था कि यूनिवर्सिटी जा रही हैं बच्चियाँ या जो लोग कॉलेज जाते हैं उनका कलर टैन होना शुरू हो जाता है ज़्यादा गर्मी की वजह से। मैं हूँ ना आपकी इस प्रॉब्लम को सबसे पहले तो बताऊँ कि इस प्रॉब्लम के लिए अकॉर्डिंग टू वेदर सबसे पहले तो बताऊँ कि प्रोडक्ट मैं खुद तैयार करती हूँ। गर्मियों के मौसम में, सर्दियों के मौसम में मैं चाहती हूँ साल के 12 महीने आप मेरी प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, लेकिन अकॉर्डिंग टू वेदर प्रोडक्ट में तब्दीली मैं खुद करती हूँ। लेकिन अब चूँकि गर्मियाँ आ गई हैं, अब सूरज की हिद्दत बढ़ गई है, रंग टैनिंग की तरफ आ गया, स्किन पर ऑयल आने लगा है, पसीना आने लगा है, तो मेरे वाटर बेसिस आपके सामने हैं। 7 कलर में रानी हर्बल के वाटर बेसिस हैं जो कि पैन केक्स हैं।
یہ 12 گھنٹے اسکن پر اسٹے کرتے ہیں. اس کو لگانے سے پسینہ بھی نہیں آتا, اس کو لگانے سے چہرے پر آئل بھی نہیں آتا. اور جو میری پروڈکٹ کے یوزر ہیں وہ تو خاص طور سے اس کا ضرور سہارا لیں. اور اچھا یہ ابھی یہ جو بہار کا موسم اس ٹائم تو یہی ہے نا, لیکن ابھی بھی کہیں کہیں لاہور میں بھی برسات ہوئی اور یہ سارا معاملہ ہوا, تو اس موسم میں کہتے ہیں کہ آپ بڑا اچھا بال اسکن کا ٹیکسچر بڑا اچھا ہو رہا ہوتا ہے, لیکن جیسے جیسے یہ ڈھلے گا اس وقت آپ کے اسکن اور بال جو ہیں وہ کیونکہ گرمی اپنا جو ہے وہ ڈیرا جما لے گی تو خراب ہونے لگ جائیں گے. اس آئل کنٹرول کے لیے کیا کرنا ہے؟ جن کو ایکنی نہیں ہے, کلر ولر سب ٹھیک ہے, لیکن آئل آتا ہے. جو میرا فیس واش ہے, میں بار بار کہتی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ استعمال کریں گے. جہاں پر سردیاں ہیں زیادہ سے زیادہ استعمال کریں, یہ آپ کی اسکن کی ڈرائنس دور کرے گا. جہاں گرمیاں ہیں زیادہ سے زیادہ استعمال کریں, یہ اسکن کا آئل کنٹرول کرے گا. اس کے ساتھ ہی جو ہمارے واٹر بیسز ہیں اور ہمارے جو کمپیکٹ پاؤڈر ہیں یہ بھی آئل کنٹرولر ہیں. صحیح, یہ سامنے یہاں پر رکھے میں رانی آپا کے واٹر بیسز, اور دن میں یہ بہترین چیز ہے. آپ کالج جا رہے ہیں, آپ آفس جا رہے ہیں, آپ اس کو لگائیے اور ایسا بھی نہیں لگتا نا کہ بہت ہیوی بیس لگا ہوا ہے. بالکل ہلکا, اور دن کے لیے نہیں, رات کو بھی بہترین میک اپ آپ کے لیے, جو گرلز کے لیے ہلکا سا جو میک اپ کرتی ہیں کہ صرف پین کیک لگائیں. لیکن شام میں یہ کہ آپ اس کے ساتھ تھوڑی سی آپ اس پہ کمپیکٹ لگا لیں, ہمارے کمپیکٹ ہے جی ہاں, اور ہمارے پہلے واٹر بیس لگائیں اور پھر اس کے بعد کمپیکٹ پاؤڈر لگا کر یہ ایک بہترین آپ کا میک اپ کا لک دے گا. اس کے بعد بلش آن لگا لیں, آئی میک اپ کریں, لپسٹک لگائیں, آپ چلے جائیں. اور اس کے ساتھ یہ ہمارا قہوہ مصطفیٰ ہے جو کہ ہر موسم کے لیے بہترین ہے. بچے بوڑھے ہمیشہ اس کو اپنے استعمال میں رکھیں. نہ صرف یہ کہ موسمی اثرات سے محفوظ رہتے ہیں بلکہ یہ آپ کا ویٹ بھی کم کرنے میں بہت ہی معاون ہے. 12 مہینے جو ہے یہ قہوہ مصطفیٰ استعمال کر سکتے ہیں. رانی آپا تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ, اور آپ کو ورلڈ ویمنس ڈے بہت مبارک ہو. خوش رہیے, مسکراتے رہیے, خود اپنی بھی عزت کیجیے تاکہ دوسرے آپ کی عزت کرنے پر مجبور ہو جائیں. انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. سلام پاکستان, پاکستان زندہ باد.